Hello, a very welcome to all of you students. So today we are going to move on to the next and the very important part of the topic, that is nothing but relation between angle and time. तो अभी इसके ऊपर हमें प्रॉब्लम्स करने हैं कि रिलेशन बिटवीन एंगल एंड टाइम पे, बट बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स डिपेंडेंट ऑन देम, हम सबसे पहले समझेंगे द बेसिक कंसेप्ट. नाउ ऑब्जर्व, we are familiar students about the analog clock. इसको हम analog clock बोलते हैं. There are two types of clock, analog clock and the digital clock. So this is nothing but we are discussing about the analog clock. Now we all know students कि one complete rotation, we have done it in previous lectures, that one complete rotation is nothing but 360 degrees. And ये जो analog clock होता है इसमें एक रोटेशन में 12 आवर्स होते हैं. So there are 12 hours in one rotation, and one rotation is nothing but 360 degrees. Now इस analog clock में total there are 3 hands. One होता है minute hand, hour hand and the second hand. So we are not going to consider the seconds वाला hand. We are going to discuss the relation between the hour hand and the minute hand. तो देखो ये जो बड़ा वाला काटा है, ये जो बड़ा वाला काटा है, this is called as nothing but the minute hand. ये जो छोटा वाला काटा है, this is called as nothing but the hour hand. So we are going to see the relation between the hour hand and the minute hand, और उन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, we are going to discuss about that. Okay, so let us start our discussion with first of all the hour hand और hour hand ऐसा बोलते हैं इसको. So now students, hour hand आप ये देख रहे हो, छोटा वाला काटा. So now you observe, मैंने उसके बीच में distance रखा है. Now this small hand is called as the hour hand and the bigger hand is called as the minute hand. Now for our hand, hour hand बोलते हैं हम इसको. Hour hand, one rotation is 360 degrees. One complete rotation for the hour hand is nothing but 360 degrees. And we know one rotation is nothing but equal to 12 hours. पूरा रोटेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो 12 घंटे कंप्लीट होते हैं. तो 12 घंटे मींस 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट हो गया. 12 hours means 360 degree rotation is completed. So what we are getting, observe over here, one rotation is 360 degrees and one rotation is nothing but 12 hours. So 12 hours is nothing but equal to 360 degrees. देखो ये भी वन रोटेशन है, ये भी वन रोटेशन है. तो 12 hours is equal to 360 degrees rotation. जब 12 घंटे कंप्लीट होते हैं तो 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट होता है. That is what is written over here. So 12 hours is 360 degrees. So 1 hour will be equal to how much? So 360 divided by 12. ये 12 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो 360 degrees divided by 12. So means students 1 hour is nothing but equal to 30 degree. तो एक घंटे में in 1 hour the angle that will be formed, that will be nothing but 30 degree angle. अभी देखो practically समझाता हूँ मैं आपको. Try to understand practically. I'm not doing theoretically. Practically मैं समझाता हूँ कि 1 hour is equal to 30 degree कैसे हो गया. अभी देखो टाइम क्लॉक में बजा, it is 12 o'clock. You can observe in the clock it is 12 o'clock. Now I am moving this clock manually. अभी मेरा ये clock चल नहीं रहा है. I am not kept it working. Now I am moving it manually. अभी देखो minute hand आगे बढ़ रहा है. तो जैसे जैसे minute hand आगे जा रहा है, the hour hand is also moving. So this is minute hand and this is hour hand. This is known to us already, right from lower standards. Okay. Now you observe, जब घड़ी में 1 बजेगा. Now say this is 1 o'clock. Now at 1 o'clock, the angle that is formed between the hour hand and the minute hand, this angle that is formed, this is nothing but 30 degree angle. तो देखो मिल गया ना relation. 1 hour is nothing but equal to 30 degrees. So write down till here. अब देखो ये verbal form है और ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ. First I'll explain this and then we'll write down the verbal format. चलो please write down. आप ये लिखते रहो, तब तक मैं आपके सामने ये क्लॉक रखता हूँ. देखो 12 to 1, अभी जब घड़ी में 1 बजा है तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है
this angle formed is nothing but 30 डिग्री। तो आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल ट्रेस करता है। आर हैंड traces the angle of 30 degree in 1 hour. That is what is written over here. ठीक है, चलो write down till here, then we'll move ahead. अभी देखो आगे 1 hour is equal to 30 degree आ गया, 1 hour is equal to 30 degree आ गया, but we all know that 1 hour is 60 minute, 1 complete hour मतलब 60 मिनट होते हैं। तो see 1 hour is equal to 60 minutes. So what we'll get over here students, that ये भी 1 hour है, 1 hour is 30 degree, 1 hour is 60 minutes. So therefore what do we obtain students, 60 minutes is equal to 30 degrees. ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे। Why so? ये भी 1 hour है और ये भी 1 hour है, तो 60 minute is equal to 30 degrees होता है। तो 1 minute is equal to, ये 60 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 minute is equal to 30 divided by 60, so that is nothing but half degree. So what will happen students, that in 1 minute कितना एंगल ट्रेस होगा, हाफ डिग्री एंगल ट्रेस होगा। तो आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री से आगे जाता है ना, जो घंटे की सुई है, जो आर हैंड है, दैट मूव्स 1 मिनट में हाफ डिग्री से आगे जाएगा। देखो वापस प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं आपको। लेट अस कम बैक टू द क्लॉक अगेन, और वापस इस घड़ी में टाइम कर देता हूं 12 o'clock। अभी देखो 1 मिनट में, इन 1 मिनट, इट इज अ वेरी स्मॉल टाइम, थोड़ा सा जरा मैं डिस्टेंस बड़ा कर रहा हूँ। सी इन 1 मिनट द आर हैंड विल गो बाय अहेड बाय हाफ डिग्री। ये देखो ये आर हैंड है पीछे वाला, तो कितने डिग्री से आगे जाएगा, तो हाफ डिग्री से आगे जाएगा। अभी हाफ डिग्री इतना छोटा है कि दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, वो जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इतना वो हाफ डिग्री छोटा है। So write down this relation also in your notebook students. So these are very important relations that we will require while solving the problems. तो अभी ये R hand का डिस्कशन हो गया। Now let us do the discussion about the minute hand students. अभी minute hand के बारे में बात करते हैं, ठीक है। Now minute hand means you can observe, ये जो बड़ा वाला काटा है इसको हम minute hand बोलते हैं, okay? Now one rotation is 360 degrees। देखो जब वो रोटेट होगा, मिनट हैंड देखो रोटेट हो रहा है, तो जब मिनट हैंड रोटेट हो रहा है तो कितना एंगल कवर कर लेगा वो, 360 डिग्रीज एंगल कवर करेगा, ठीक है ना। तो द मिनट हैंड सो वन कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्रीज होता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एंड वन रोटेशन इज 60 मिनट्स। तो एक रोटेशन में 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। तो वन रोटेशन, ये भी वन रोटेशन है और ये भी वन रोटेशन है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो वी कैन इक्वेट देम। तो 60 मिनट्स इज नथिंग बट इक्वल टू 360 डिग्री। 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री घूमता है। देखो 60 मिनट में जो मिनट हैंड है ये 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करता है। ये देखो ये 60 मिनट कंप्लीट हो गए। 60 मिनट मींस 1 आवर इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो ऐसा है, ये याद रखना है। तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री रोटेशन स्टूडेंट्स। तो 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच, तो 360 डिवाइडेड बाय 60। ये 60 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 डिग्रीज को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट इज नथिंग बट इक्वल टू 6 डिग्री रोटेशन। तो पुट अ बॉक्स ओवर दिस। तो जब मिनट हैंड मूव होता है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल ट्रेस करता है। ओके, ऑब्जर्व, आई विल शो यू वंस अगेन। सी एवरीथिंग आई एम शोइंग यू प्रैक्टिकली, कुछ भी थ्योरेटिकली नहीं बता रहा हूँ इसमें क्लॉक वाले में। 1 मिनट में, इन 1 मिनट, ऑब्जर्व, ये देखो ये 1 मिनट कंप्लीट हो गया। अभी 1 मिनट में मिनट हैंड ने कितने डिग्री से आगे गया, तो 6 डिग्री से आगे गया है। So that is what we are getting, the angle between the hour hand and the minute hand. So this is a very important part of the topic and I have explained you practically. देखो ये minute hand ऐसा move होता है, minute hand move होगा तो hour hand भी students
मूव होगा। तो ये सारे रिलेशंस हमें याद रखने हैं। ओके चलो, so we once again revise the important point that 1 hour is nothing but equal to 30 degrees. 1 minute, आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री से आगे जाता है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री से आगे जाता है। नाउ लेट अस रिमेंबर दिस इन द वर्बल फॉर्म। राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू रिमेंबर दिस वर्बल फॉर्म। ओके प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। Angle between any two consecutive digits is 30 degrees. Now students, this word consecutive digits means one after the other. देखो वापस एक बार समझाता हूं मैं आपको, तो आपको वापस लेके आता हूं। एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स इज 30 डिग्री, मतलब 12 to 1 के बीच में जो एंगल ट्रेस होगा। ओके आई विल ब्रिंग क्लोज टू यू, चेक, मैं घड़ी थोड़ा पास में रहता हूँ, ठीक है। तो 12 to 1 के बीच में जो एंगल ट्रेस होगा दैट विल बी 30 डिग्री। ओके 1 to 2 के बीच में जो एंगल ट्रेस होगा दैट विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। कंसेक्यूटिव डिजिट्स, 1 के बाद 2 आता है, फिर उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, तो 2 to 3 के बीच में जो एंगल ट्रेस होगा दैट विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। 3 to 4 के बीच में जो एंगल ट्रेस होगा वो भी 30 डिग्रीज का एंगल होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 से एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स इज 30 डिग्रीज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिख लो, एंगल मूव्ड बाय द आवर हैंड इन 1 hour इज 30 डिग्रीज। एंगल मूव्ड बाय द आवर हैंड इन 1 hour इज नथिंग बट 30 डिग्रीज। चलो वापस एक बार बता देता हूँ आपको, घड़ी में देखो अभी नाउ द टाइम इज 12 o'clock, ठीक है। अब देखो जब ट्रेस होगा 12 to 1 जब वो मूव होगा, चेकआउट, आई एम शोइंग यू प्रैक्टिकली। हाँ अभी देखो पहले 12 बजे थे घड़ी में, नाउ द टाइम इज 1 o'clock इन द क्लॉक। अब देखो ये 30 डिग्री एंगल है। तो एंगल मूव्ड बाय द आवर हैंड इन 1 hour, पहले 12 पे था तो 12 to 1 आया, तो पहले देखो आवर हैंड यहाँ पे था, फिर वो 12 to 1 आया, तो 1 घंटे में उसने 30 डिग्री एंगल कवर किया। किसने? आवर हैंड ने। ये जो घंटे की सुई है छोटी वाली, हाँ आवर हैंड बोलते हैं इसको। थर्ड वन, एंगल मूव्ड बाय द आवर हैंड इन 1 minute इज हाफ डिग्री। अब ये बहुत छोटा है, आई हैव शोड टू यू। तो आवर हैंड 1 मिनट में आधे डिग्री से आगे जाता है ना, हाफ डिग्री showing you on the clock is very difficult. And the fourth point, angle moved by the minute hand in 1 minute is 6 degree. तो जो मिनट हैंड है 1 मिनट में 6 डिग्री से आगे जाता है। तो राइट डाउन दिस पॉइंट्स इन द वर्बल फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो वापस आपको देखो देखने की कोशिश करो, ये देखो अभी टाइम 12 o'clock हुआ है, बराबर। अब मैं धीरे धीरे मिनट हैंड को आगे करता हूँ, तो देखो ये 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही लिया है मैंने, सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल। सो एंगल मूव्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 minute, 1 मिनट में कितने डिग्री से आगे जाएगा, तो इट विल गो अहेड बाय 6 डिग्री। ये देखो ये 12 पे है, 12 से थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये 6 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। तो दैट इज व्हाट इट इज। चलो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और फिर हम इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लॉक वाले। अब इसमें दो ही, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, इनफैक्ट 3, 1, 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स हमें काम आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। 1, 2 एंड 3 will help us to solve the problem. So this is the introduction of relation between the angle and time. Please note down, then we'll move ahead. Okay students, so write down question number 14, exercise number 1.1. Find the angle between the hour hand and the minute hand in a clock at 10 past 11. तो सबसे पहले तो हमें ये टाइम लिखना है 10 past 11। तो 10 past 11 मतलब टाइम जो हुआ है घड़ी में वो है 11:10। 10
past 11, so it is 11:10 in the clock. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ दिस सिचुएशन, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं क्लॉक को. So just draw a rough diagram for your reference students to understand. Draw a circle. ठीक है, 12, 3, 6, 9. Now draw all the digits initially. सब कुछ ड्रॉ कर लेते हैं. This is 1 o'clock. This is 2 o'clock. This is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12. हाँ, अभी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है स्टूडेंट? 11:10. 11:10. So let us draw this. So put a circle over here. Now 10 minutes means minute hand is at 10. तो ये मिनट हैंड ऊपर है. अब क्योंकि 11:10 हो गए हैं, तो जो आर हैंड है, आर हैंड इज अहेड ऑफ 11. ठीक है ना, ये 11 एग्जैक्टली इधर है. तो द आर हैंड इज स्लाइटली अहेड ऑफ 11. 11 से थोड़ा आगे निकल चुका है, बिकॉज द मिनट हैंड हैज रीच्ड एट 10. तो आर हैंड आगे जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल. ये एंगल उसने पूछा है हमें. फाइंड द एंगल बिटवीन the hour hand and the minute hand in a clock at 11:10. ठीक है, so first you draw this diagram. A rough diagram will do. अच्छा, on the clock I will show you. यहाँ पे देखो, वहाँ पे तो हमने ड्रॉ किया ही है. ये देखो यहाँ पे सॉरी 11:10 हो गए हैं क्लॉक में. तो देखो, इफ यू कैन सी द आर हैंड इज अहेड ऑफ 11. हाँ, मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड एग्जैक्टली 10 पे है. एंड सी द आर हैंड, इट इज अहेड ऑफ 11. 11 से थोड़ा आगे निकल चुका है. तो दिस इज द सिचुएशन. और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल दैट इज फॉर्म बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड, दैट इज टू बी फाउंड आउट. ओके, चलो ड्रॉ दिस. प्रैक्टिकली आई एम शोइंग यू. नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग डाउन द सॉल्यूशन. अभी देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स है स्टूडेंट्स? इफ यू ऑब्जर्व क्लॉक में 11 to 2, मतलब 11 से लेके 2 तक. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 11 to 12, 12 to 1 and 1 to 2. So 30 degree, 30 degree, 30 degree. Okay, so this angle 11 से लेके 2 तक it is 90 degree. चलो I'll explain. Now let us come on to the board. अभी लिखो आप, angle between any two consecutive digits is 30 degree. लिखो reason. Since ये सॉल्यूशन यहीं पे स्टार्ट होता है. ऐसा लिखो, since the angle between any two consecutive digits is 30 डिग्रीज. कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले, 11 to 12 के बीच में 30 डिग्री एंगल होगा. 12 to 1 के बीच में 30 डिग्री. 1 to 2 के बीच में 30 डिग्री. सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन. पॉइंट नंबर 1, एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स इज 30 डिग्री. अभी कितने डिजिट्स है? 11 से लेके 2 तक. 11 to 12, 12 to 1, 1 to 3, 1 to 2. so these are total 3 digits. मतलब तो अभी कितना एंगल ट्रेस करेगा? तो इट विल ट्रेस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. राइट डाउन. इसके बाद लिखो एंगल बिटवीन द डिजिट्स. राइट डाउन आफ्टर दिस, एंगल बिटवीन द डिजिट्स 11 to 2 is 30 प्लस 30. देखो यहाँ पे मैं आपको, फर्स्ट एग्जांपल है तो आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप वाइज. 11 to 12 ये 30 डिग्री एंगल हो गया. 12 to 1 ये 30 डिग्री एंगल हो गया. और ये भी 30 डिग्री एंगल हो गया.
तो 11 से 2 के बीच में कितना हो गया? 30 प्लस 30 प्लस 30, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्रीज। तो ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, एंगल बिटवीन द डिजिट्स 11 to 2 इज 90 डिग्रीज। ये लिख लो स्टेटमेंट आप। उसके बाद ये यूज करेंगे, एंगल मूव्ड बाय, ऐसे लिखो नेक्स्ट लाइन पे, एंगल मूव्ड बाय आवर हैंड in 1 minute is equal to half degree। ये रिलेशन हमें मालूम है, एंगल मूव्ड बाय द आवर हैंड इन 1 minute इज हाफ डिग्री। तो 1 घंटे में एंगल मूव्ड बाय, घंटे का काटा जो है, एंगल मूव्ड बाय जो आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री से आगे जाता है। तो आवर हैंड 10 मिनट में कितने डिग्री से आगे जाएगा? देखो 10 मिनट आगे हो गए ना, इट इज 10 past 11, मतलब 11:10 हो गए हैं। तो 10 मिनट आगे निकल चुका है। तो आवर हैंड जो ऑब्वियसली जब मिनट हैंड मूव होगा तो आवर हैंड भी मूव होगा। अब आवर हैंड कितने डिग्री से मूव हुआ है वो हमें लिखना है। तो राइट डाउन, देयरफॉर एंगल moved by the hour hand in 10 minutes, 10 मिनट में कितने डिग्री से आगे जाएगा? तो 10 मिनट में 10 divided by 2 degrees, so that is nothing but equal to 5 degrees। Try to understand students, hour hand 1 मिनट में आधा डिग्री से आगे जाता है, हाफ डिग्री से आगे जाता है। तो एंगल मूव्ड बाय आवर हैंड इन 10 मिनट, 10 मिनट में वो कितने डिग्री से आगे जाएगा? 5 डिग्री से आगे जाएगा। अभी आप देखो, अगर ये 11 o'clock पे होता, इफ द आवर हैंड, आई विल ड्रॉ द डॉटेड लाइन ओवर हियर, इफ द आवर हैंड वुड हैव बीन ओवर हियर, ये देखो ये आवर हैंड अगर यहाँ पे होता, अगर 11 o'clock पे होता आवर हैंड, तो ये सिचुएशन होता। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल दैट इज बीइंग फॉर्म, दिस एंगल इज मेजरिंग नथिंग बट 5 डिग्री। ये रेड में मैंने मार्क किया। ओके चलो डाउन। अब देखो ये अगर आवर हैंड यहाँ पर होता, आवर हैंड इफ इट वुड हैव बीन ओवर हियर, इसके पहले होता, वो 11 o'clock पे होता, पर 11 से तो आगे निकल चुका है, तो ये 5 डिग्री का एंगल ऑलरेडी ट्रेस कर चुका है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव रिटर्न ऑन द बोर्ड। तो ये समझने की कोशिश करो, ये सारे स्टेटमेंट सेम रहेंगे प्रॉब्लम में, ओनली दैट आवर हैंड का जो कितने मिनट से आगे गया है उतने मिनट से डिवाइड अपॉन 2 कर देने का। 10 मिनट से आगे गया है तो 10 डिवाइडेड बाई 2, अगर 15 मिनट से आगे गया है तो 15 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन। तो चलो अभी ये छोटा सा ये भी एक ड्रॉ कर लो आप कि ये 5 डिग्री से आगे गया है, एंड राइट डाउन टिल हियर। So now what will happen students, we want to find out angle between the hour hand and the minute hand। तो देखो therefore next line पे, therefore angle between hour hand and minute hand is equal to 90 degrees minus 5 degrees, that is nothing but 85 degrees आएगा आंसर हमारा। Now try to understand, again I'll explain कि ये 85 degrees कैसे आया। यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी लिख लिया, यहाँ तक आपको ऑलरेडी समझ में आ गया। Now the angle between the hour hand and the minute hand is 90 degrees minus 5 degrees क्यों किया, और आंसर 85 degrees क्यों आया? Try to understand। Now you see over here from, अभी अगर ये आवर हैंड 11 पर होता, इफ द आवर हैंड वुड हैव बीन एट 11 एग्जैक्टली, तो यहाँ से ये जो बड़ा वाला एंगल है, मैं बड़ा वाला एंगल फॉर्म कर रहा हूँ,
दिस एंगल वुड हैव बीन 90 डिग्रीज। ठीक है, ऑब्जर्व, यहां से ये एंगल 90 है, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, तो ये 90 डिग्री एंगल है। बट क्योंकि जो आर हैंड है वो 11 से ऑलरेडी आगे निकल चुका है, तो मिनट हैंड आगे मूव होगा तो आर हैंड भी आगे मूव होगा ना, तो इट हैज ऑलरेडी मूव्ड अहेड। कितने डिग्री से आगे निकल चुका है स्टूडेंट्स? तो ये जो तो ये 90 डिग्री एंगल है और इसमें से ये 5 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो ब्लू वाला एंगल दिखा है ना आपको, ब्लू वाला मैंने मार्किंग किया है, दैट ब्लू वाला एंगल इज रिक्वायर्ड। तो हाउ विल वी गेट दिस ब्लू वाला? 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। देखो ये जो 90 डिग्री एंगल है ये पूरा, उसमें से ये 5 डिग्री निकल गया। तो जब ये 5 डिग्री निकल जाएगा इसमें से, आई जस्ट हाइड दिस, चेक, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्रीज है। 90 डिग्री में से 5 डिग्री गया, तो 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो दिस रिमेनिंग एंगल इज नथिंग बट 85 डिग्री। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर हाउ विल वी कम टू नो, सब्ट्रैक्ट ही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है? क्योंकि कभी कभी हमें एंगल में प्लस भी करना पड़ता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, समटाइम्स वी हैव टू ऐड आल्सो। अभी आप देखो ना सिचुएशन, अगर 11 बज रहे होते हैं तो 11 से 2 के बीच में 90 डिग्री एंगल है, वी विल अप्लाई सिंपल लॉजिक। 11 to 2 के बीच में 90 डिग्री है, बट 90 डिग्री से तो एंगल कम है ना। देखो यहाँ पे क्लॉक बताता हूँ मैं वापस आपको, ये देखो 11 से 2 के बीच में 90 डिग्री है, बट आपको दिख रहा है ना कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अब लेस है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 5 डिग्री का एंगल ऑलरेडी ट्रेस हो चुका है, देखो 5 डिग्री एंगल इज ऑलरेडी ट्रेस्ड। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 85 डिग्री इज द आंसर। ओके, प्लीज नोट डाउन, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको एकदम। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन, फॉर्मेट वही रहेगा। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, 35 past 1, past means it is already done, 35 past 1 means घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो है 1:35, 1:35। 45 past 1, तो 1:35। लेट अस ड्रॉ दिस टाइम। ड्राइंग इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए है ड्राइंग। तो 35 मतलब जो मिनट हैंड है वो 7 पे है, दिस इज 35, ये 7 पे है, एंड दिस इज, ये आर हैंड है, तो दिस इज आर हैंड एंड दिस इज द मिनट हैंड। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, आई एम जस्ट मार्किंग इट विद द ब्लू। This angle is to be found out. We want to find out angle between the R hand and the minute hand. चलो draw this quickly first of all. Problems का format वही रहेगा, इसमें कुछ भी change नहीं होगा। So when we start with the solution, so you'll write down, since angle between any two consecutive digits is 30 degree, statement same लिखो आप। If these kind of questions are asked students, they will carry 2 to 3 marks, 2 से 3 मार्क के लिए आ सकते हैं ये प्रॉब्लम। नाउ एंगल बिटवीन द डिजिट्स, अब देखो कौन से डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, 1 से। एंगल बिटवीन द डिजिट्स 1 to 7, ठीक है। नाउ एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स इज 30 डिग्री। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप ध्यान दे दो, बाद में लिख लेना। 1 to 2 ये 30 डिग्री एंगल हो गया, 2 to 3 30 डिग्री एंगल हो गया, 3 to 4 30 डिग्री, 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। तो 30 plus 30 60, 60 plus 30 90, 90 plus 30 120, 120 plus 30 150, 150 plus 30, so this angle is 180
80 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द डिजिट्स 1 to 7 इज नथिंग बट 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल होता है 1 to 7 के बीच में। स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना, 1 to 7 के बीच में स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो 180 डिग्री एंगल ट्रेस होगा। बट क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये 180 से छोटा है। दिस एंगल इज लेस देन 180। हाँ चलो, अभी अगर ये आर हैंड 1 पे होता, हमने 1 पे डिजिट लिया है ना, तो वी हैव टेकन एट 1। तो लेट मी शो यू बाय ड्राइंग। अगर ये ऐसा सिचुएशन होता, इफ इट वुड हैव बीन एट 1, ठीक है, तो ये मैं रेड में मार्क करता हूँ। तो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब क्योंकि आर हैंड ऑलरेडी आगे आ चुका है, द आर हैंड हैज मूव्ड अहेड, ठीक है, तो ये 180 में से ये वाला एंगल हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस एंगल इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्री, दैट विल गिव मी माय, ये जो ब्लू वाला एंगल है आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, वो हमें मिलेगा। चलो ड्रॉ दिस ऑल्सो। ये देखो मैं आपको टाइम बताता हूँ, ये देखो ये घड़ी है, दिस इज 1:35 इन द क्लॉक, यू कैन सी। 1 सेकेंड, 1:35 हुए हैं क्लॉक पे। तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल ओवर हियर, दिस इज टू बी ट्रेस्ड। ये एंगल हमें फाइंड करना है 1:35 पे क्या एंगल फॉर्म हुआ है। तो अगर 1 बजे पे होता, इफ दिस हैंड वुड हैव बीन एट 1, तो अगर 1 पे होता तो देखो ये 180 डिग्री एंगल होता। दिस वे यू कैन सी माई स्केल, ये 180 डिग्री एंगल होता, बट अभी 180 से कम है बिकॉज इट हैज मूव्ड अहेड, तो वो हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिकली आई एम एक्सप्लेनिंग यू। नाउ नेक्स्ट लाइन पे लिखो, एंगल मूव्ड बाय द आर हैंड इन 1 मिनट इज हाफ डिग्री। जो घंटे की सुई है, जो आर हैंड है, 1 मिनट में आधे डिग्री से आगे जाती है। तो एंगल मूव्ड बाय द आर हैंड इन 35 मिनट्स, इन 35 मिनट्स is nothing but equal to 35 upon 2 डिग्री। जितना भी मिनट आगे गया ना, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जितना भी मिनट आगे गया है उसको 2 से डिवाइड करना है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला प्रॉब्लम में, बट क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल था तो इसलिए आई हैव गिवन यू एक्सप्लेनेशन स्टेप वाइज। 35 डिवाइडेड बाय 2, नाउ जस्ट डिवाइड 35 बाय 2 एंड टेल मी हाउ मच विल दिस बी। तो इट विल बी नथिंग बट 17.5 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ना, छोटा वाला, देखो यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। दिस एंगल इज मेजरिंग, ये जो रेड और ब्लू लाइन के बीच में है, दिस एंगल इज मेजरिंग 17.5 डिग्री। 17.5 डिग्री एंगल मेजर कर रहा है। तो 180 में से 17.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग एंगल मिलेगा हमें। तो angle between the hour hand and the minute hand is equal to 180 degree minus 17.5 degree. Calculate and that will be your final answer. तो चलो मेरे को बताओ कितना डिग्री एंगल आपको मिलेगा। या यू कैन राइट डाउन। तो 180 में से 17 गया, 180 माइनस 17 तो आएगा 163 में से 0.5 गया, तो इट इज 162.5 डिग्री। So angle between the hour hand and the minute hand when the time is 1:35 in the clock, that angle that is formed is 162.5 डिग्री। मतलब ये देखो, ये क्लॉक में अभी जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना 1:35 पे, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस वाला, this angle is measuring 162.5 degree. Problem is over. Note down. देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। Statements are all same. Angle between any two consecutive digits is 30 degree. तो कितने digits वहां पे ट्रेस हुए हैं वो एंगल आपको लिखना है। कितने मिनट से आर हैंड आगे गया है, तो हाफ डिग्री से हमेशा जाता है 1 मिनट में। तो जितने भी मिनट्स हुए हैं, मिनट शुड बी डिवाइडेड बाय 2, और फिर प्लस करना है कि माइनस करना है वो टाइम पे डिपेंड करेगा। ओके, प्लीज नोट डाउन, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, now read on the next example. Question 14 का ये fourth example है students. Quarter to 6. Now quarter to 6 means what is the time in the clock? So it is nothing but 5:45. 5:45 हुए हैं. That is we say quarter to 6. So let us draw this situation. को ड्रॉ कर लेते हैं हम. हाँ, तो 45 तो क्वार्टर टू 6 तो 45 पे ये है हमारा मिनट हैंड. ठीक है, मतलब 5:45 हो रहे हैं. ठीक है, एंड दिस इज अवर आर हैंड एंड दिस ब्लू वाला एंगल इज टू बी फाउंड आउट. ड्रॉ दिस. ये रफ डायग्राम है समझने के लिए. नाउ सी दिस सिचुएशन. ऑब्वियसली ये थोड़ा सा और यहाँ पे आएगा, बट ठीक है, दिस इज रफ 45 है ना, तो एक्चुअली थोड़ा सा और यहाँ पे खसका हुआ होगा. दिस विल बी इन दिस मैनर. ऐसा ये 5:45 हो रहे हैं. 5:45. यू कैन सी दिस. आई विल शो यू. यहाँ पे देखो, ये 5:45 हुए हैं. 5:45 और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड, दिस एंगल इज टू बी फाउंड आउट. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिजिट 5 टू डिजिट 9 एंगल लिखेंगे. कितना हो गया पहले? सिस्टम इज सेम फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. स्टेटमेंट आप देखो बोर्ड पे है. सिंस द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स इज 30 डिग्री, तो एंगल बिटवीन द डिजिट्स 5 to 9, 5 से 9 तक जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना है? देखो, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 and 8 to 9, 30, 60, 90, 120. 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. 5 to 9 के बीच में 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. तो अगर सपोज ये 5 पे होता, चेक आउट, आई ड्रॉ इट ओवर हियर फॉर योर रेफरेंस. तो व्हाट इज दिस एंगल? यहाँ से यहाँ तक, रेड, विद द रेड दैट आई एम मार्किंग, दिस एंगल इज नथिंग बट 120 डिग्री. ये जो रेड में लिखा है मैंने. उसके बाद ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे. दिस एंगल वी विल फाइंड आउट. तो 120 में से ये एंगल सबट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लू वाला एंगल मिलेगा हमें. चेक आउट डायग्राम. तो ये 120 डिग्री एंगल मिल गया. नाउ द एंगल मूव्ड बाय द आर हैंड इन 1 मिनट इज हाफ डिग्री. अब कितने मिनट है? 45, राइट? तो एंगल मूव्ड बाय द आर हैंड इन 45 मिनट इज 45 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. अभी मैंने आपको बताया प्रीवियस एग्जांपल में भी, जितने मिनट हुआ है ना, मिनट डिवाइडेड बाय 2 डिग्रीज में हो जाएगा. नाउ जस्ट डिवाइड 45 बाय 2. तो कितना आएगा? मेरे को जल्दी से करके बताओ कैलकुलेशन. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. 45 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 22.5 डिग्री आएगा. ठीक है. नाउ 120 डिग्री में से 22.5 डिग्री इज टू बी सब्ट्रैक्टेड. ये पूरा एंगल 5 से 9 अगर होता तो 120 है, बट 120 से कम है. देखो, कैन सी आई शो यू द क्लॉक. अगर 5 पे काटा होता तो 5 to 9 120 है. तो 120 में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अगर 5 पे होता ना, तो 5 के आगे इतना आ चुका है. ये देखो, ये 5 पे यहाँ पे होता तो इतना आगे आ चुका है, तो वो एंगल हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो व्हाट विल हैव टू डू स्टूडेंट्स? इट इज द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड विल बी 120 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री. जल्दी से कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताओ. तो 120 में से 98 में से 0.5 गया, तो इट इज 97.5 डिग्री इज द आंसर. So it's very simple. Problems are very simple to be done and to be understood. Right down. सबका फॉर्मेट सेम है. देखो, अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम्स किए, तीनों का फॉर्मेट सेम है. फॉर्मेट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम. तो नोट डाउन द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अच्छा, अभी ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी स्टूडेंट्स की टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही आएंगे. देयर इज नो रूल एज सच.
क्लॉक में तो कोई भी टाइम हो सकता है, तो वो कोई भी टाइम पूछ सकता है, ठीक है। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, 6:15। चलो आप ट्राई करो, आई गिव यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, ड्रॉ करो एंड स्टार्ट डूइंग, लेट्स ट्राई दिस। अब ध्यान से पढ़ना आप, 6:15, वो 5:45 था, अब ये 6:15 है, पास्ट मतलब इट इज डन। 6:15 मीन्स व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक स्टूडेंट्स? 6:15 हुए हैं, इट इज 6:15 इन द क्लॉक। तो 6:15 पे क्या एंगल होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो लेट अस ड्रॉ द पोजीशन, ये 15 मिनट है, दिस इज मिनट एंड ये ऐसा है सिचुएशन, थोड़ा सा 6 के आगे जाएगा, दिस इज 6, इज स्लाइटली अहेड ऑफ 6। तो ये सिचुएशन है, दिस एंगल इज टू बी फाउंड आउट, ये एंगल हमें फाइंड करना है। 6:15 जब होंगे घड़ी में तो क्या टाइम हुआ है? तो स्टेटमेंट तो आपको पता है, सेम है, since the angle between any two consecutive digits is 30 डिग्री, तो एंगल बिटवीन द डिजिट्स, अच्छा अभी आप देखो, एंगल बिटवीन द डिजिट्स कितने डिजिट्स है? 3 to 6, ठीक है, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, तो ये कितना एंगल हो गया? तो 3 to 6, तो 3 to 6 इट इज नथिंग बट 90 डिग्री एंगल। बट अभी घड़ी में दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। नाउ इन द प्रीवियस 3 प्रॉब्लम्स वी हैव डन सब्ट्रैक्शन, अभी इसमें ऐड करना है हमें। देखो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, घड़ी बता देता हूँ आपको। देखो ये 6:15 टाइम हो रहा है इन द क्लॉक, दिस इज 6:15। तो अगर ये आर हैंड छोटा काटा अगर 6 पे होता तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता, बट ये 6 के आगे है, तो ये एंगल अपने को 90 में प्लस करना पड़ेगा। दिस एंगल 6 टू जितना भी आगे गया है, that angle should be added to 90 degree, ठीक है। राइट डाउन, तो 3 to 6 90 डिग्री एंगल ट्रेस हो गया। तो एज वी नो एंगल मूव्ड बाय द आर हैंड इन 1 मिनट, आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री से आगे जाता है, एंगल मूव्ड बाय द आर हैंड इन 15 मिनट्स, देखो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 मिनट्स, तो दिस विल बी नथिंग बट 15 divided by 2, and 15 divided by 2 is nothing but 7.5 डिग्री, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर 6 पे होता, आई जस्ट ड्रॉ विद द रेड लाइन, एक रेड लाइन ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ मैं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये रेड लाइन ड्रॉ किया। अगर 6 पे होता तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के आगे भी तो है, ये एंगल है ना, इतना एंगल ट्रेस हुआ है ना, आगे गया है उतना, तो 90 में ये जो पार्ट है वो प्लस हो जाएगा, अभी इट इज ग्रेटर देन 90। तो एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड मिनट हैंड इज नथिंग बट 90 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, so that is nothing but equal to 97.5 degree is the answer. Write down. प्लस करना है, देखो घड़ी में वापस बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर ये काटा 6 पे होता, 6 पे होता तो 90 होता, तो 90 प्लस दिस एंगल, दैट इज नथिंग बट 97.5। तो प्लस वाला भी प्रॉब्लम ले लिया, ऐसा नहीं है कि हमेशा माइनस ही करना है, वी मे हैव टू एड द 2 एंगल्स ऑल्सो, वी मे हैव टू सबट्रैक्ट द 2 एंगल्स ऑल्सो। अब वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है, और डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको वो जजमेंट आ जाएगा कि एंगल में प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है। चलो प्लीज नोट डाउन। Hmm, 97.5 डिग्री इज द आंसर। इसको 97 हाफ भी लिख सकते हैं। Keep it as it is, 97.5 degree, no problem. So I hope everyone must have understood how we have to solve the problems that are related to the clock. So hour hand और minute hand के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है तो ये प्रोसीजर हमें यूज करना है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दीज आर।
Okay, students. So remaining questions of question number 14, exercise 1.1 में जो क्वेश्चन 14 है उसके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप करोगे एज एन होमवर्क सेक्शन। हाँ, मैंने एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी कर दिया जो टेक्स्ट बुक में नहीं था, बट इसके जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है दे आर टू बी डन बाय यू। ओके, start note of this and then we'll stop for today.